Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, in today's lecture, I'm going to discuss the chief qualities of Chaucer. चौसर की शायरी की जो बड़ी खूबियाँ हैं वो बयान करने जा रहा हूँ. Number 1, Chaucer's descriptions are unusually clear cut and vivid. चौसर की जो डिस्क्रिप्शन है, जो बयान है, वो बड़ा ही क्लियर कट और बड़ा वाजे है. क्लियर कट एंड विविड, वाजे और क्लियर कट. They are the work of a poet who did not shut himself in his study. उसकी शायरी जो है वो ऐसे शायर की तख्लीक है जिसने अपने आप को स्टडी रूम तक महदूद नहीं रखा था, बट हु मिंगल्ड अमंग हिज फेलो मैन, बल्कि जो घुल मिल गया अपने साथियों के साथ है. नोटिस दैम एक्यूटली, और उसने बड़ी एक्यूटली और माइन्यूटली, बड़े ही बहुत ज़्यादा जो है वो उनको ऑब्ज़र्व किया, नोटिस किया. ही सेज ऑफ द फ्रायर, फ्रायर के बारे में वो कहता है, हिज आइन ट्विंकल्ड इन हिज हेड अराइट एज डून द स्टार्स इन द फ्रॉस्टी नाइट. कि उसकी आंखें उसके सर में यूं चमकती थीं जिस तरह के सितारे रात को चमकते हैं आसमान पर. Our eyes and ears distinctly perceive the jolly monk as he canters along. और monk के बारे में वो कहता है, and when he rode men might his bridle hear gingling in a whistling wind as clear and eke as loud as doth the chapel bell. तो पहली खूबी ये है उसकी पोइट्री की. दूसरी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है चॉसर्स परवेसिव सिंपैथेटिक ह्यूमर, यानी उसकी सिंपैथेटिक ह्यूमर, मज़ा जो है, is especially characteristic. We can see him looking with twinkling eyes at the mirror, tolling thrice, at the monk, full fat and in good point, hunting with his greyhounds, swift as fowl in flight, or smiling before a fat roast swan, at the squire keeping the nightingale company, at the doctor prescribing by the rules of astrology. The nun feels a touch of his humor. तो इस तरह चौसर की ह्यूमर जो है वो दिखाई गई है. मुख्तलिफ जो कैरेक्टर हैं उनके डिफरेंट जो एक्शंस हैं उनके थ्रू. तो नन फील्स अ टच ऑफ हिज ह्यूमर, नन जो है वो भी, उसमें भी टच आता है उसकी ह्यूमर का. फुल वेल शी सॉन्ग द सर्विस डिवाइन and tuned in her nose full simile of the lawyer. He says, और lawyer के बारे में वो कहता है, nowhere so busy a man as he there knows, and yet he seemed busier than he was.
Chaucer's humor is so delicate as to be lost on those who are not quick-witted. तो बाज़ दफ़ा चासर की जो ह्यूमर वो इतनी डेलिकेट नाजुक होती है कि जो क्विक विटेड लोग नहीं हैं वो उसको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते. Lowell instances the case of the friar who, before setting himself softly down, drives away the cat. तो लोवेल ने ये लाइनें फ्रायर की कोट की हैं. And adds what is true only of those who have acute understanding. We know without need of more words that he has chosen the snuggest corner. His humor is often a graceful cloak for his serious philosophy of existence. तो उसके जो ह्यूमर है उसके ज़रिए उसने ग्रेसफुल क्लोक जो है वो दिया है अपनी सीरियस फिलॉसफी ऑफ लाइफ को, एग्जिस्टेंस को. द ह्यूमर इन द प्रोलॉग डज नॉट impair its worth to the student of 14th century life. थर्ड पे है, although Chaucer's humor and excellence in lighter vein are such marked characteristics, we must not forget his serious qualities. तो कहते हैं कि अगरचे ह्यूमर भी है लेकिन सीरियस क्वालिटीज़ भी पाई जाती हैं चौसर की पोइट्री में. फॉर ही हैज़ द सेक्सन सीरियसनेस एज वेल एज द नॉर्मन एरीनेस. क्योंकि उसमें सेक्शन जो है उनकी सीरियसनेस पाई जाती है और जो एरीनेस है, जो इतराव है, नाजो फ़ख्र है, वो नॉर्मन्स वाला है. एज ही लुक्स ओवर द स्ट्रगलिंग वर्ल्ड, जब वो स्ट्रगलिंग वर्ल्ड को देखता है, ही सेज विद सिंपैथेटिक हार्ट, तो बड़े ही सिंपैथेटिक हार्ट के साथ वो अपना कमेंट्स देता है. इन्फिनिट बिन द sorrows and the tears of old folk and folk of tender years. In like vein we have, और इसी तरह हम देखते हैं, this world nis but a thoroughfare full of woe, and we been pilgrims passing to and fro. Death is an end of every worldly sore. Harness none whom harness but wilderness. Forth pilgrim, forth best out of thy stall. Know thy country, look up, thank God of all. The finest character in the company is that of the parish priest, who attends to his folk like a good Samaritan. But Christ Lord and his apostles 12, he touched and first he followed it himself. Fourth quality of Chaucer's poetry is the largeness of his view of human nature is remarkable. यानी उसकी जो ह्यूमन नेचर की अंडरस्टैंडिंग है. सम पोएट्स इधर इंटेंशनली और अनइंटेंशनली पॉइंट वन टाइप ऑफ मैन एक्यूरेटली एंड डिस्टॉर्ट ऑल द रेस्ट. यानी कुछ पोएट जो है वो एक तरह के जो कैरेक्टर है उनको तो बड़े अच्छे जो है पोर्ट्रे करते हैं, लेकिन रेस्ट ऑफ द कैरेक्टर जो है उनको डिस्टॉर्ट कर देते हैं, ख़राब कर देते हैं. चौसर इम्पार्शियली पोर्ट्रेज द हाईएस्ट एज वेल एज द लोएस्ट, एंड द ऑनेस्ट मैन एज वेल एज द हिपोक्रेट.
यानी उसने तमाम रैंक्स और तमाम क्लासेस के लोगों को पोर्ट्रे किया है। ऑनेस्ट को भी पोर्ट्रे किया और हिपोक्रेट को भी। द पिक्चर्स ऑफ द रोगेश फ्रायर, यानी जिस तरह पिक्चर है रोगेश फ्रायर की, एंड द सेल्फ डिनाइंग पारिश प्रीस्ट, यानी बदमाश जो फ्रायर है और जो सेल्फ डिनाइंग पारिश प्रीस्ट जो है, अपनी ज़ात को भी ताज कर देने वाला, सेल्फ एबनिगेशन इसे कहते हैं, तो वो करने वाला पारिश प्रीस्ट जो है। द ऑक्सफर्ड स्कॉलर एंड द मिलर, द फिजिशियन एंड द शिपमैन आर पेंटेड विद इक्वल फाइडिलिटी टू लाइफ। तो उसने बड़ी ही फाइडिलिटी के साथ, ईमानदारी के साथ, सिंसेरिटी के साथ तमाम जो पिक्चर्स हैं, कैरेक्टर्स हैं, उनकी पिक्चर जो है पेंट की हैं इन वर्ड्स। इन द ब्रेड्थ एंड काइंडलीनेस ऑफ हिज व्यू ऑफ लाइफ, चॉसर इज़ अ वर्दी प्रेडिसेसर ऑफ शेक्सपियर। अगर हम काइंडलीनेस देखें और उसका व्यू ऑफ लाइफ देखें तो वो शेक्सपियर का प्रेडिसेसर होने का क्या है, वर्दी है। ड्राइडन्स वर्डिक्ट ऑन चॉसर्स पोएट्री इज, ड्राइडन ने जो चॉसर के पोएट्री पे जो वर्डिक्ट दिया है, जो हुक्म सुनाया है, हेयर इज गॉड्स प्लेंटी। तो ड्राइडन कहता है यहाँ तो खुदा की रहमत की कसरत है। हेयर इज गॉड्स प्लेंटी, प्लेंटी कसरत, बहुतात। फिफ्थ, his love of nature is noteworthy for the early age। के लव ऑफ नेचर जो है पाया जाता है चौसर की पोइट्री में। सच लाइन्स एज दीज मैनिफेस्ट समथिंग मोर देन अ डिज़ायर फॉर रेट्रिकल इफेक्ट इन स्पीकिंग ऑफ नेचर्स फिनोमिना। तो नेचर्स के फिनोमिनी के बारे में लाइनें जो लिखी हैं ये, नाउ वेलकम समर विद दाई सोन सॉफ्ट दैट हैज दिस विंटर वेदर्स ओवर शेक and driven away the long nights bleak. His affection for the daisy has for 500 years caused many other people to look with fonder eyes upon that flower। तो डेज़ी की जो उसने तारीफ़ की है तो 5 सदियाँ हो गई लोग उस फ्लावर को प्यार से देखते हैं। सिक्स्थ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ चॉसर्स पोएट्री, he stands in the front rank of those who have attempted to tell stories in melodious verse। यानी उन लोगों की सफ़ में खड़ा है चौसर जिन्होंने मेलोडियस वर्स जो है वो हमारे सामने पेश किया है। तो मेलोडी हम कह सकते हैं चौसर की पोएट्री में जो मौसीकियत है, मेलोडी है। लोवेल जस्टली सेज, और लोवेल ने सही तो कहा है, वन ऑफ द वर्ल्ड्स 3 or 4 great storytellers, he was also one of the best versifiers that ever made English trip and sing with a gaiety that seems careless, but where every foot beats time to the tune of the thought। लोवेल कहता है कि वन ऑफ द वर्ल्ड्स 3 or 4 ग्रेट स्टोरी टेलर्स, के चौसर जो था वो दुनिया के 3-4 जो बेहतरीन स्टोरी टेलर्स हैं उनमें से था। ही वाज आल्सो वन ऑफ द बेस्ट वर्सिफायर्स दैट एवर मेड इंग्लिश ट्रिप, के जिन लोगों ने इंग्लिश में लिखा उनमें से वो बेहतरीन वर्सिफायर था, शायरी लिखने वाला था। एंड सिंग विद द गेटी, और जो गाया गया बड़ी खुशी के साथ, दैट सीम्स केयरलेस, जो कि लगता है कि केयरलेस है, बट वेयर एवरी फुट बीट्स टाइम टू
टाइम ऑफ द थाट, जहाँ पर हर जो फुट बीट है वो थाट्स जो हैं, ख्यालात जो हैं, उनका भी इजहार कर रही है। सेवंथ क्वालिटी ऑफ चासर्स पोएट्री, ही इज़ द फर्स्ट ग्रेट इंग्लिश ऑथर टू फील द इन्फ्लुएंस ऑफ द रेनेसांस। चासर पहला इंग्लिश राइटर है जिसने रेनेसांस का जो असरात हैं, इफ़ेक्ट्स हैं, उनको फील किया। विच डिड नॉट अनटिल लॉन्ग आफ्टरवर्ड्स कल्मिनेट इन इंग्लैंड, जो कि अभी तक जो है इंग्लैंड में इंट्रोड्यूस नहीं हुए थे, नहीं आए थे रेनेसांस के असरात। गॉवर हैज़ इज लवर हियर टेल फ्राम अ कन्फेसर इन क्लोस्टर्ड क्वाइट। गावर ने जो लवर्स हैं उनके कन्फेशनल जो स्टेटमेंट है वो सुने हैं क्लोस्टर क्वाइट, यानी एक बंद जो क्लोस्टर है उसके अंदर जो उसने सुने हैं। क्लोस्टर होता है जहाँ पर वो अपने गुनाहों की कन्फेशन करते हैं लोग, तो यानी गॉवर ने वो दिखाया है। चॉसर टेक्स हिज पिलग्रिम्स आउट फॉर जॉली हॉलीडे इन द अप्रैल सनशाइन, जबकि चासर जो है वो अपने कैरेक्टरों को अप्रैल के जॉली हॉलीडेज़ में सनशाइन में लाया है, बाहर लाया है, आउटिंग पे लाया। ही शोज़ द स्पिरिट ऑफ द रेनेसांस इन इज़ जॉय इन वेरीड लाइफ, तो ये वैरायटी ऑफ लाइफ में जो उसके कैरेक्टर जो है वो इंजॉय कर रहे हैं, तो इट इज़ आल्सो स्पिरिट ऑफ रेनेसांस इन इज़ डिज़ायर फॉर नॉलेज ऑफ ऑल क्लासेस, और उसकी डिज़ायर है जो नॉलेज की है ऑल क्लासेस ऑफ पीपल, ऑल मैन एज वेल एज ऑफ बुक्स, किताबों की। इन इज़ ह्यूमर, उसकी ह्यूमर में। एंड इन इज़ जनरल रीचिंग आउट इनटू न्यू फील्ड्स, और जनरली जो है नई नई जो है वो फील्ड्स में, नए नए शोबे में उसका जाना, एक्सपेरिमेंट्स करना। ही मेक्स अस फील दैट ही लिव्स इन अ मैरियर इंग्लैंड, और वो हमें ये कराता है, एहसास दिलाता है कि वो एक बड़े ही खुश इंग्लैंड में रह रहा है। वेयर बोथ द मोरिस डांसर एंड द पिलग्रिम मे शो देयर जॉय इन लाइफ, जहाँ पर जो है एक जो डांसर है वो भी और जो पिलग्रिम है वो अपनी खुशी वो दिखा सकते हैं और इन्जॉय कर सकते हैं लाइफ को। सो इन द एंड व्हाट चासर डिड फॉर द इंग्लिश लैंग्वेज, तो ये हम डिस्कस करते हैं थोड़ा सा कि चासर ने इंग्लिश लैंग्वेज के लिए क्या किया। बिफोर चासर्स वर्क्स इंग्लिश वाज एज वी हैव सीन अ लैंग्वेज ऑफ डायलैक्ट्स, तो ये डायलैक्ट्स की, लहजों की सिर्फ ज़बान थी। ही रोट इन द मिडलैंड डायलैक्ट, उसने मिडलैंड डायलैक्ट में लिखा। एंड एडेड इन मेकिंग दैट द लैंग्वेज ऑफ इंग्लैंड, और इसको इंग्लैंड की लैंग्वेज बनाया। लॉन्सबरी सेज ऑफ चासर्स इन्फ्लुएंस, और लॉन्सबरी ने चासर के इन्फ्लुएंस के बारे में कहा है। No really national language could exist until a literature had been created which would be admired and studied by all who could read and taken as a model by all who could write. Sorry. It was only a man of genius that could lift up one of these dialects into a preeminence over the rest, or could ever give to the scattered forces existing in any one of them the unity and vigor of life. This was the work that Chaucer did. तो यानी लॉन्सबरी ने कहा है कि चासर से पहले ये तमाम डायलैक्ट्स जो है ये तो मौजूद थे, लेकिन लैंग्वेज जो है वो उस लेवल की नहीं थी। तो ज़रूरत थी कि कोई ऐसा अजीम आदमी जो उठे जो उनमें से एक डायलैक्ट को चुन के और उसको जो है वो
दूसरों से मुमताज़ करे, और ये काम चौसर ने किया। फॉर दिस रीज़न ही डिज़र्व्स टू बी कॉल्ड आवर फर्स्ट मॉडर्न इंग्लिश पोइट। तो इसलिए उसको पहला मॉडर्न इंग्लिश पोइट कहा जा सकता है और वो इसका हकदार है। एट फर्स्ट साइट his works look far harder to read than they really are because the spelling has changed so much since Chaucer's day। तो पहली नज़र में ये उसके वर्क्स जो हैं वो थोड़े से मुश्किल लगते हैं क्योंकि स्पेलिंग जो है वो काफ़ी डिफ़र कर गए हैं। एंड विद दिस वी कंक्लूड आवर लेक्चर। अस्सलामु अलैकुम।